Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 16, chapter number 4, where heading of this chapter's name is motion in a plane. Probably this will be the last lecture of this chapter. But apart from this, I'm going to take numericals related to motion in a plane. Anyhow, this physics is belonging to NCRT class 11 physics, whereas the today's concept is to get understand the relation between the expression लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब आज जो हम डेरिवेशन देखने वाले हैं और एल्स एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गेट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो छोड़ के another derivation we are going to see in two methods. One method which is conventional, as usual, centripetal acceleration. Another one, we are going to see the alternate method, how to derive the expression of centripetal acceleration. ठीक है? With this, we will be going to close this chapter. चलो. So tomorrow onwards, we are going to see numericals. ठीक है? तो उसके लिए दो से तीन क्लास बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, मोशन इन अ प्लेन के. Then we'll start with the Newton's laws of motion, or else gravitation. देखेंगे कौन सा होगा वो. Fine. Okay. We are going to see the relation between linear and angular velocity. ठीक है? Now, where we see this, क्या practically exist करता है sir the relation between linear and angular velocity? First of all, linear velocity क्या होता है? Linear velocity is nothing but it is same as usual velocity, जिसको आप velocity कहते हो ना, commonly velocity कहते हो. If the velocity is taking place in a straight line, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे या लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक है, चलो. नाउ लीनियर वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? स्मॉल v रहता है. नाउ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? सो द एंगुलर वेलोसिटी यू यूजुअली गेट इनटू द सर्कल. ठीक है, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी ही बोलते हैं. तो ये कहां पे मिलता है? यहां पे मिलता है. ठीक ऐसे. ओके, so you'll get with the help of angle where radius r and this is x. x क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? dx by r. एंड व्हाट इज dx? dx इज नथिंग बट r into d थीटा. ठीक है, तो आप अगर ऐसा रोटेशन कर रहे हो किसी चीज का, तो उसका बाहर आना तय है. मींस व्हेन यू आर गिविंग angular velocity you will get linear velocity. तो दोनों के बीच में हमें रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है. So by what means? By radius means. By radius means. When radius is tied together with the angular velocity, you will get the linear velocity. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जब आप रेडियस को ऐसे घुमाओगे, तब उसका परिणाम जो मिलेगा that will be linear velocity. So basically this expression we need to क्या derive. हमें इसी डेरिवेशन को क्या करना है? डिराइव करना है. तो वो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा में एक्सप्रेस करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंड वी यूज टू एक्सप्रेस इन स्मॉल v. whereas the relation between v and omega is held by the constant radius vector. तो v is equals to r omega. ये हमें एक्सप्रेशन को डिराइव करना है. ठीक है, सो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि डेरिवेशन को कैसे करना है. ठीक है, एंड वेयर वी आर कनेक्टिंग दिस रिलेशन. ठीक है, so this is how we'll come to know that the relation between v is equals to r omega. चलो, so we are going to consider the whole derivation. तो पहले एक काम करते हैं,
वी यूज टू पुट द डायग्राम, हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम इट इज? एक सर्कल लेना है, ठीक है. सो दिस सर्कल इज हैविंग, the circle is having imaginary symmetry into the square. तो ये स्क्वायर में जो है ना, ये स्क्वायर में जो है ना, इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी सिमेट्री. Why? Because the whole activity is taking place into this square shape wall. ये square shape red वाला है, ये wall है. This is imaginary circle. Okay. Now what we are going to do here is, हम लोग एक स्क्रू ड्राइवर ले रहे हैं, ठीक है. तो स्क्रू ड्राइवर लेके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Now wait. सो यहाँ पे ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है. तो what we are showing here is, ठीक है. तो स्क्रू ड्राइवर लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्रू को लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. वेयर इज द सेंटर? कहाँ पे है सेंटर? सेंटर तो यहाँ पे है. ओके, नाउ सो दिस इज योर स्क्रू ड्राइवर, ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्रू ड्राइवर को आप घुमा रहे हो, ठीक है. The screwdriver is rotating by the axis of rotation of the center of the circle by making an angle of what? थीटा. यहाँ पे थीटा बना के आप घुमा रहे हो स्क्रू ड्राइवर को. कैसे? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है. क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज तो ये होता है. सो दिस इज योर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है, ठीक है. सो यू विल गेट द डायरेक्शन आउटसाइड, वेलोसिटी v, एंड रोटेशन क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू r, द डिस्टेंस कितना चेंज हुआ यहां से लेके यहां तक, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, वेट, सो वट एवर दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग, ये डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है? dx चेंज हो रहा है, ठीक है. तो इसके लिए आप लोगों ने क्या इक्वेशन बनाना है? थीटा इज इक्वल्स टू dx बाय r. दिस implicates r is equals to, not r is equals to, dx is equals to, क्योंकि dx चेंज हो रहा है in terms of linear term and we are getting angular term, ठीक है. ऐसे dx is equals to r d theta. What are these? dx क्या है, d theta क्या है? We are going to see that. Now the whole activity, are you observing that कि क्या, किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है? We are getting two types of velocity. One is linear velocity, ठीक है. One is linear velocity. कहाँ पे बताओ मुझे? Linear velocity is here. अंदर velocity is ऐसे, यहाँ पे है वो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो लेट d थीटा एंड dx, ठीक है. ये थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, as well as dx is also changing, ठीक है. बिटवीन टू पॉइंट्स, एक को मैं p कह लेता हूं, दूसरे को मैं q कह लेता हूं, ठीक है. बिटवीन टू पॉइंट्स p and q, be the angular and linear displacements, ठीक है. सर क्या थीटा को हम डी थीटा बोल सकते हैं? यस बच्चों. सो डी थीटा वेरीज एज डी एक्स वेरीज,
जैसे डी एक्स और डी थीटा में एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, जितना आप एंगल बढ़ाओगे उतना ही एक्स मिलेगा, मतलब थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलो, सो यू आर गेटिंग टू नो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि let d theta and dx between 2 points P and Q be the angular and linear displacement respectively of a particle। ठीक है, ये पार्टिकल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, और इसको हम पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो द डायमेंशन, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवलिंग, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट या बॉडी को पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये क्या कर रहा है, इट इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। ओके, सो वी आर कंसीडरिंग आउट द PQ distance। PQ is covered by the theta angle which is reflecting the distance called dx। ठीक है, in time dt। चलो, let small r be the, यहां पे है ना, be the radius of circular path। ठीक है, radius of what, of circular radius of circular path। ठीक है, so क्या क्या चीज पता चला, we came to know what is r radius and what is dx, it is the distance, and theta, that is the angular displacement, dx क्या है, linear displacement है, omega क्या है, angular velocity, and what is small v, that is linear velocity। ठीक है, so we have हमारे पास क्या है, linear velocity, linear velocity is equals to linear displacement divided by time। ठीक है, okay, so v is equals to dx by dt। so linear displacement we are expressing out dx by dt। सर ये d क्या होता है, d मतलब चेंज होना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम टेकन। मतलब ये देखो बच्चों, आई वांट टू सेपरेट दीज थिंग्स, मैं आपको सेपरेट करके पढ़ाना चाहता हूं ये चीजें क्या है। ठीक है, ये डी जो है ना, डी मीन्स व्हाट, चेंज इन, चेंज इन, डी मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका मतलब ये होता है dx मतलब क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बट व्हाट टाइप ऑफ चेंज सर दिस इज, क्या हम लोग जो लिखते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t, सर ये भी तो चेंज होते हैं, दीज आर आल्सो चेंज सर। माय डियर किड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट्स के लिए क्या मिलेगा, एक आपका इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, कुछ गैप मिलेगा, दिखेगा इसमें कि उसके लिए टाइम गैप भी आपको पता चलेगा कि टाइम का जो गैप है ना वो t1 और t2 है, और यहाँ पे x1 और x2 है। मेरी बात समझो बच्चों, यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर डिफरेंशिएट, गैप मिलेगा टाइम का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो, बट हियर यू विल नॉट गेट द गैप, यू आर गोइंग टू गेट द स्मॉल इंस्टेंट, और वो कितना छोटा होगा, नियर नियर जीरो के बराबर होगा, नियर नियर, not equals to zero but nearer to zero। that amount of quantity which is having tendency to move towards zero but it is not equals to zero, तो उस तरह के क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी बोलते हैं, या छोटा वाला क्वांटिटी, बहुत ही छोटा। ओके, सो क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई दोनों के बीच में, डेल्टा
is also change in displacement, d is also change in displacement, लेकिन डेल्टा वाला चेंज है ना, वहां पे दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वन इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और वन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट in case of what delta. But in case of small d will not be having any kind of 2 points, initial and final, x1 and x2. सिर्फ छोटा वाला instant of time में जो भी displacement होगा, that small displacement is called as dx by dt. ठीक है, बस यही चीज आपको समझाना था मुझे, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम टेकन. चलो अच्छी बात है, समझ में आया बच्चों को. नाउ एज वी नो दैट कि dx का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो dx का वैल्यू क्या है, dx इज इक्वल्स टू r d थीटा डिवाइडेड बाय dt. ठीक है ना, सही है. dx इज इक्वल्स टू r d थीटा, यहाँ पे सॉल्व भी करवाया मैंने फर्स्ट में ही. ठीक है, मतलब क्या है उसका. ठीक, ओके. सो दिस implicates what, v as it is लिखो, r को as it is लिखो, angular displacement divided by time taken is called as angular velocity, omega. So v is equals to what, v is equals to r into omega. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? What I'm trying to say that. Fine, हो गया. So this is all about the relation between linear and angular velocity. आपको तो पता चल गया कि मैंने कैसे और क्या चीज ली है. ठीक है, सो ये तो चीजें आपको पता चल गई कि स्क्रू ड्राइवर कहाँ पे है, और उसको क्यों घुमाया जाता है. उसके बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलता है, और एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलती है. हमने घुमाया, लेकिन उसका जो मोशन है ना मेरे तरफ है. अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो मोशन विल बी टू योर साइड. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंक्लूजन क्या मिला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिला. बस यही चीज है. So now we are going to see the centripetal acceleration. Centripetal acceleration. ठीक है. I'm going to draw a circle. तो सर्कल ड्रॉ करने से क्या होगा सर? उससे बहुत कुछ होगा बच्चों, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल सीखने मिलेंगे आपको. ठीक है, सो like this. चलो, now I'm going to make a center. इसके लिए एक सेंटर बनाऊंगा. चलो मैंने यहाँ पे बना रखी है, सेंटर मैंने यहाँ पे बनाई. ओके, सो हियर आर द टू एरो मार्क्स को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे. Wait. So the red arrow mark I'm going to use. ऐसे टेंजेंट की तरह ऐसे यूज करूंगा इसको. Means you need to show the direction of any body which is moving in a circular path with its tangent, and that should be perpendicular to the radius of the circle. मेरी बात समझो, रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जाके आप किसी भी बॉडी का डायरेक्शन बता सकते हो. एंड द टेंडेंसी ऑफ बॉडी विच इज मूविंग in the direction of tangent will be always towards the center into the circular path. तो
वो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो क्या 90 डिग्री है ये भी? सो दिस इज द डायग्राम, हम लोग डायग्राम डाल रहे हैं एंड आई एम पुटिंग दैट कि ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर 2 पॉइंट्स whereas this angle is nothing but d theta. Now the direction of the centripetal acceleration वो किधर रहेगा बताओ मुझे? It should be downwards. कहाँ पे होना चाहिए? Downwards होना चाहिए। ठीक है, now listen up my dear kids, what we are trying out to understand. Wait, एक दूसरा कलर एक लेता हूं मैं जिससे मैं आपको बता सकूं कि see, I'm using green color here. ठीक है, so this is nothing but dl. ये क्या रहेगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्टेंस। अगर पॉइंट ए पे कोई पोजीशन ऑफ द बॉडी, at the point b there will be different position, so there will be change in position means there will be change in distance or change in length. ठीक है, so इसके और सारी चीजें नेमिंग कर लेते हैं। this is also r and this is also r. ठीक है, एक को आर बोल लो, एक को आर डैश बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज फ्रॉम द ओरिजिन ओ ए इज हैविंग डिफरेंट पोजिशन वेक्टर और OB इज हैविंग डिफरेंट पोजिशन वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल बी ऑलवेज हैविंग टेंडेंसी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो now linear velocity vector of A and linear velocity vector of B, दो पॉइंट्स पे, at point A as well as at point B. Now my dear kids, वेक्टर शिफ्टिंग करते हैं। अभी क्या करते हैं? We are going to see the centripetal acceleration by using vector shifting. करें? So first we are going to take this one. तो कैसे लें इसको? Sir, how it should be taken properly? Now listen up my dear kids. I will take first of all straight line. ये जो लाइट स्ट्रेट लाइन जो है ना, यहां से मैं इसको ऐसे खींचूंगा विद द पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि शिफ्ट करने के लिए इजी हो जाए। नहीं सर, हमें ग्रीन ही चाहिए तो मैं ग्रीन पे ही करूंगा। ठीक है, दिस एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसी को मैं खींच लूंगा यहां तक। ठीक है, नाउ हाउ द वेक्टर शिफ्टिंग कैन बी डन? तो वेक्टर शिफ्टिंग आप यहां पे करो। सी हियर, द सेम टेल ऑफ द वेक्टर OA is kept on the tangent of vector OB. ठीक है, तो दोनों के आपने क्या कर दिए? You have taken, you have chosen the tangent. Now if you keep this one, आपको क्या मिलेगा? See, आप थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। You can shift like this और आप इसको खींच सकते हो ऐसे। Is that clear? दिख रहा है आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? This is the resultant. ये आपका क्या है? Resultant of the centripetal acceleration. सो इससे हमें क्या सीखने को मिला बच्चों? दिस इज नथिंग बट मैं ब्लैक यूज करूंगा, दैट इज बेटर। दिस इज डी थीटा, ओके, एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ए, वेलोसिटी वेक्टर बी। ठीक है, बिकॉज दीज tangents आर रिफ्लेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ टू पोजिशन where the body is kept. This is Q and R. ठीक है,
क्यू आर क्या है? दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर विच इज शोइंग द, क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वी ए और वी बी का जो रिजल्टेंट है ना वो क्यू आर बता रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी शोन change in velocity. So change in velocity can be shown with Vb minus Va dv करके, ठीक है। So this is how we are reflecting the centripetal acceleration. तो centripetal acceleration को हम लोग ऐसे ही लिखने की कोशिश करते हैं by using two figures. एक आपका फिगर 1 है, ठीक है, और दूसरा आपका फिगर 2 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से हम लोग इन्हीं चीजों को यहाँ पे डाल के रखते हैं ताकि हमने कैसे इसका वेक्टर शिफ्ट किया आपको पता चले। इज दिस करेक्ट? देखो मैंने सही डायग्राम कर रहा हूं। सिंपली आई एम टेकिंग द क्लोन्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स और मैं फिगर 1 पे फिर से वही चीजें रख रहा हूं, बस और कुछ नहीं। हो गया? सो दीज आर द टू फिगर्स विच आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी इसका डेरिवेशन बनाते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द कंसिडरेशन पार्ट ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। नहीं, ग्रीन कलर यूज करते हैं। So we are going to write the consideration part. कितना है और क्या है, ठीक है। चलो ये सही रहेगा। Okay. So listen up, my dear kids. Consider a moving particle, ठीक है, with constant speed, ठीक है, constant speed बोल रहे हैं, velocity कहीं पे भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है। V in a circular path. सर लेकिन क्या यहाँ पे velocity क्यों नहीं बोल सकते? Why we are using term called speed? Because you know, my dear kids, at each and every point of the circular path, the direction will be going to change. जब direction change होता है तो we cannot specify the direction. Since velocity is a vector quantity and speed is not a vector quantity. क्योंकि speed में direction fix नहीं रहता है and velocity में direction fix रहता है. So that is why the reason instead of using the term called velocity, we are using the speed term. चलो ठीक है. So circular path of radius r with the center at O as shown in figure 1. Vector VA and vector VB are the velocities of the particles. Velocities of the particle at the points A and B. ठीक है. See here, VA and VB को हमने velocity इसलिए कहा because we are specifying the direction at the specific points A और B पे. तब तो आपको डायरेक्शन मिलेंगे. कैसे मिल रहे हैं? By using these tangent arrow marks. तो उससे हमें क्या मिल रहा है? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो स्पीड के विषय में क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट होल सर्कुलर पाथ. ओके. So dl is the
distance. dl is the distance traveled by the particle traveled by the particle in time dt. d theta is the angle subtended, ठीक है, by the dl at o. ठीक है, ये देखो dl जो डिस्टेंस है ना, इसी से एंगल d थीटा सबटेंड हो रहा है, कहां पे, यहां पे o पे, ठीक है. सो फिगर 2 क्या रिफ्लेक्ट करता है? सो फिगर 2 shows the subtraction of vector vb from vector va. ठीक है, तो मिलता क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर is shown in the figure 2. Handwriting is going bad. In the figure 2, according to the triangle law of vector subtraction. ठीक है, the direction of acceleration is same. Acceleration is same as that of dv. ठीक है, तो dv का जो डायरेक्शन रहेगा ना, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का रहेगा. ठीक है, मेरी बात समझो बच्चों. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज द डायरेक्शन ऑफ dv. तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो इट इज शोन इन फिगर 1. हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि ये डायरेक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है. तो ये डायरेक्शन और ये dv का जो डायरेक्शन है, बोथ आर सेम. तो अगर मैं इसका वेक्टर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, इसका वेक्टर शिफ्ट कर दूं, सो सी हियर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ AC इज सेम. ठीक है, बस यही चीज कहना चाह रहा हूं. ओके, नाउ द ट्राइंगल PQR, the triangle PQR in figure 2, ठीक है, and the triangle ABO in figure 1. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो triangle ABO as well as triangle PQR are similar. दोनों सेम है. ठीक है, for similar triangles, the ratio of base length, the ratio of base length क्या रहता है? टू साइड लेंथ. For one of the triangles,
or one of the triangles is equal to that of the okay. So as I was saying, uh, where the ratio of base length to side length, ठीक है, ये बेस लेंथ क्या होता है सर, ठीक है, और साइड लेंथ क्या होता है, मींस देखो बेस लेंथ ऑफ वन पर्टिकुलर ट्रायंगल क्या है बोले तो एक आर है आपका और दूसरा ए बी है, ठीक है। सो डीएल इज व्हाट, इट इज लेंथ, एंड व्हाट इज आर, दिस इज बेस, क्योंकि एंगल से सटा हुआ है, ठीक है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी को एंगल बना रहा है, सो बेस टू द लेंथ, द रेशियो ऑफ बेस टू द लेंथ, मतलब क्या होगा, ये लिखेंगे तो AO डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, AO डिवाइडेड बाय AB, नहीं, द रेशियो ऑफ बेस लेंथ मतलब DL इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, DL इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, ऐसे आप लिखते हो, वेट, DL is equals to RD theta, D theta is equals to DL by R, हाँ, ओके, आई हैव रिटन रिवर्स, देखो D थीटा को कैसे लिखते हो आप, DL by R लिखते हो, एम आई राइट। सो द रेशियो ऑफ बेस लेंथ कैसे लिखते हो, DL by R मींस AB by AO, आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स, क्या लिखोगे आप लोग, AB by AO, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ बेस लेंथ of one right angle, one triangle, not right angle triangle, one triangle, तो ये आपका क्या बन गया, रेशियो ऑफ बेस लेंथ बन गया। और रेशियो ऑफ साइड लेंथ क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड लेंथ क्या होता है, PQ बाय QR होता है क्या, PQ बाय QR नहीं, अगर AB ऊपर है तो QR ऊपर रहेगा, फिर ओके, सो R से लेके Q मींस QR डिवाइड बाय PQ, ओके फाइन। जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे AB इज द, यू नो, क्या बोलते हो आप, लेंथ है, तो उसको आपने ऊपर लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइड लेंथ, तो लेंथ QR को भी आप ऊपर लिखोगे, QR डिवाइडेड बाय PQ, ठीक है, ऐसे QR डिवाइडेड बाय PQ। सो बाय टेकिंग दीज टू प्रोपोर्शन फ्रॉम वन ट्रायंगल टू द अदर ट्रायंगल, तो AB बाय AO इज इक्वल्स टू QR बाय PQ लेके आगे आप क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, बाय टेकिंग दीज टू प्रोपोर्शन यू आर फाइंडिंग आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स करके ऐसा कोई थ्योरम था आपको 10th में, प्रोबेबली 10th आई थिंक, सिमिलर ट्रायंगल्स, आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है, ऐसा था शायद ABC देन DEF ऐसा कुछ, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, यस। सो बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट यू आर सिंपली टेकिंग आउट द प्रोपोर्शन, दोनों का प्रोपोर्शन आप कंपैरिजन कर रहे हो, एक का आप बेस लेंथ ले रहे हो, दूसरे का आप साइड लेंथ ले रहे हो, साइड लेंथ PQR का ले रहे हो, बेस लेंथ आप AB का AOB का ले रहे हो, तो AB डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप लोग, AB डिवाइडेड बाय AO करोगे, तो एक तरफ QR डिवाइडेड बाय PQ करोगे, गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स, ये वाला प्रोपोर्शन लेके आप आगे चीजों को सॉल्व करोगे, कैसे, AB डिवाइडेड बाय AO is equals to QR divided by PQ, is that clear? चलो, तो आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को लेके, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर डिफरेंट थिंग, सो स्क्रीन शेयर दूसरा ले लेते हैं, वेट, so I have stopped this screen share, I'm going to go for दूसरा वाला स्क्रीन शेयर ले लेते हैं, ओके,
चलो ओके, दिस इज फाइन. Fine. I have shared the screen. Okay. Okay, हमने यहीं पे रोका था. Triangle C is equal to that of the other triangle. ठीक है. तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इक्वेशंस. ठीक है. सो दिस इज, ये आपका O था, ये आपका A था, ये आपका B था. ठीक है. सो दिस इज DL, दिस इज R. और एक क्या था, दिस इज योर PQR. ये आपका T थीटा है, ये भी आपका D थीटा है. ठीक. सो you're writing out the proportion. See here, ratio of side length for one of the triangles is equal to that of the other triangle. तो रेशियो मैंने बना लिया AB by AO का. ठीक है. तो ये आपका क्या है, बेस लेंथ है, और साइड लेंथ क्या है, PQ by not PQ by QR by PQ. Okay, so I'm going to follow up the whole derivation. तो अभी AB डिस्टेंस क्या था बताओ मुझे. व्हाट इज AB? क्या DL है? यस. व्हाट इज AO? R है. व्हाट इज QR? QR's डायरेक्शन एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था. तो QR क्या है? इट इज DV. ओके. नाउ व्हाट इज PQ? PQ क्या था? PQ was is that V? PQ तो V था, वेलोसिटी. ठीक है. सो वी गॉट दिस. हमें क्या मिला? DV is equals to V into DL by R. Take this as equation number 1. But the centripetal acceleration क्या है बताओ मुझे. Centripetal acceleration is nothing but AC is equals to, यहाँ पे है ना ये AC is equals to change in velocity with respect to change in time. क्या मेरी बात सही है? If it is, take it as equation number 2. ठीक है. चलो. Now equation 1 into क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? तो क्या मिलेगा हमें? AC as it is. ठीक है. फिर DV की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? V by R DL by DT. ठीक है. See, is that correct? V by R DL by DT. Okay, fine. क्योंकि मैंने DV के बदले में क्या लिखा? See here, DV के बदले में V into DL by R. Is that fine? Do anybody have confusion? No. Okay, चलो. Yes sir का जो आंसर है, वो जो आंसर है, is that any confusion? No sir बोलना छोड़ के yes sir. Is that fine के लिए था वो आंसर? Okay, चलो अच्छी बात है. Now okay, it's clear. Fine, चलो अच्छी बात है यार. तो अभी देखिए what we are going to see, क्या हम इसको DL by DT को V करके ले सकते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी लीनियर, which one परिजन?
ये वाला, चलो देखो यहाँ पे बताऊंगा डिफरेंट विद डिफरेंट कलर। सी AC इज इक्वल्स टू dv बाय dt है, ठीक है। तो dv का वैल्यू क्या है बताओ मुझे v इंटू डी एल बाय आर है, ठीक है। तो 1 बाई डी टी को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिलेगा हमें, v बाय आर इंटू डी एल बाई डी टी। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? ओके चलो, so you got this right. Now dl by dt is, we all know that it is v फैक्टर आता है, ठीक है। so AC is equals to v by r into v probably। so v into v क्या होता है बताओ मुझे, AC is equals to v square by r। so this is your expression, last expression for centripetal acceleration। बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये चीज, ठीक। चलो दिस इज ओवर, ये हो गया। नाउ नोट कीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ आप कैसे लिखते हो? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या F इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हो? यस, वेरी गुड। सो फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन means the bodies which are revolving into the circular path and its tendency is towards the center of the circular path, ठीक है। उसके लिए आप AC करके लिखते हो, ठीक है। फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, सो दिस इज फॉर लीनियर फोर्स, ये आपके लीनियर फोर्स के लिए है, ठीक है, ये फॉर्मूला। फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स उसके लिए आप क्या करोगे, FC लिखोगे। तो ये m इंटू ए टू द बेस सी, तो आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। सो ये आपका लीनियर फोर्स का फॉर्मूला, ये क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया ना? सो ये आपका पूरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। चलो ठीक है। सो expression for centripetal acceleration, so this is nothing but my dear kids, ये आपका alternate method है चीजों को फाइंड करने के लिए, ओके। अल्टरनेट मेथड, चलो ठीक है। नाउ एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उस पे आपको कंपोनेंट्स बनाने, ठीक है। सो दिस इज सेंटर, तो मैंने ये सेंटर को ड्रॉ कर लिया। दिस इज योर सेंटर, तो हम उसको ओरिजिन O बोलेंगे, ये आपका R है और ये आपका थीटा है, ठीक है। सो नाउ वन थिंग माय डियर किड्स, इसी का एक्सटेंशन में डायरेक्शन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ मुझे, नाउ इट इज करेक्ट, ये सही है शायद, हाँ। ओके, व्हाट इज दिस, टेल मी, क्या वेलोसिटी इसकी जीरो है इस ऑब्जेक्ट की? इफ द ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, क्या इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो है? टेल मी,
क्या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट कि जीरो है? सर आप सही बोल रहे हो। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी वेलकम है, मींस इफ यू से नो सर, दैट इज आल्सो वेलकम। क्या वेलोसिटी जीरो है? नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनटू अ सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बताओ मुझे? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको किधर रहेगा? इधर रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? एट दैट पॉइंट, पॉइंट ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा? इन दिस डायरेक्शन। नीचे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इफ इट इज इन रेस्ट, इफ इट इज इन रेस्ट, नो डायरेक्शन विल बी देयर। प्रियंका राठौड़, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, हम ऊपर से देख रहे हैं, कोई चीज घूम रही है ऐसा सर्कल में, सर्कल में ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो देखो ऐसे घूम रही है, तो ऊपर से देख रहे हैं हम, ऐसे जाके ऊपर से देख रहे हैं, अरे यार घूम रहा है ऐसे, ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सीइंग। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि v is equals to 0 into the external direction of circular path। बाहरी डायरेक्शन में v is equals to 0 है, opposite to the center। but tangential direction पे कोई, मतलब we are showing out the specific direction of velocity। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करूं? ओके, so listen up my dear kids, I'm showing up another direction, और एक डायरेक्शन बता रहा हूं इन द लास्ट डेरिवेशन ओनली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो उसी में मैंने बताया कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज देयर एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट टेंजेंशियली। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन में ही बताई है। दिस इज द अल्टरनेट मेथड वेयर यू आर सर्चिंग आउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन। दिस इज सी, ठीक है, पॉइंट सी है ये आपका। नाउ if you take um, if you take the components of these velocities, तो पॉइंट ए पे तो आप लोग कंपोनेंट यहां पे नहीं ले पाओगे, बट इफ यू टेक एट दिस पॉइंट, यहां पे अगर लेना चाहोगे यहां पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। बट हियर इज द डोमिनेंट, मतलब पॉइंट ए पे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। The velocity has not splitted at the point A, but at the point C the velocity has splitted into two components, दो components में बटा हुआ है। I will show with the red color, ठीक है, रेड कलर नहीं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, that is better। See here, it has divided into two parts, एक x axis पे और दूसरा y axis पे। Try to understand my point। दूसरा क्या है? y axis पे। सर कैसे सर? करेक्ट, दिमाग में आया कुछ? आई एम मेकिंग एन एंगल हियर, मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ। कहाँ पे एंगल बना रहे हो सर आप? यहाँ पे बना रहा हूँ थीटा। सो ये आपका डी थीटा बन जाएगा, ये आपका वी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, नॉट एडजेक्टिव, एडजेसेंट बन जाएगा। और ये आपका हाइपोथेनस बन जाएगा, हाइपोथेनस इज इक्वल्स टू वी। और ये क्या बनेगा? ये आपका अपोजिट बनेगा। ये कैसे अपोजिट बनेगा सर? बिकॉज इफ यू शिफ्ट वेक्टर लाइक दिस, तो आपका अपोजिट साइड बन गया ये। तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट हियर ओनली। कोई दिक्कत किसी को? Got? Very good. So listen up. We all know that ki cos theta is equals to adjacent by what? Hypotenuse. So what this implicates? Hypotenuse को cos theta के साइड में भेजो तो adjacent का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो hypotenuse तो v है, तो v cos theta मिल गया। किसका? adjacent का। मतलब इसके सामने क्या लिखोगे? v cos theta लिखोगे। Am I right? चलो ठीक है। व्हाट अबाउट अपोजिट? अपोजिट को मुझे लगता है बोलना ना पड़े आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोथेनस। अगर बोलते हो हाइपोथेनस क्या है? v है। सो व्हाट दिस इम्प्लीकेट? v sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? v sin थीटा। वेरी गुड, तो सिंपल है। सो जहां पे एक क्वांटिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है अलोंग द एक्स एक्सिस, सो यू कैन से दैट, सी हियर,
क्या हम इसको कह सकते हैं, सी हियर, क्या इस वेलोसिटी v को मैं इधर बोल सकता हूं कि इट इज अलोंग द x एक्सिस c, ऐसे? सो वी कैन नॉट स्प्लिट दिस क्वांटिटी फर्दर, बट ये देखो आपका वेलोसिटी v, सो यहाँ पे रखोगे तो नाइदर दिस इज ऑन द x एक्सिस, नाइदर दिस इज ऑन द y एक्सिस, सो वी आर स्प्लिटिंग this velocity quantity at the point C in terms of v cos theta along the horizontal as well as v sin theta along the vertical lines. ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया ये चीजें क्या है, फाइन, एंड दिस इज पॉइंट बी. सो इतना तो हमने लिख लिया, ये क्या है पूरा बाइफर्केशन. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द कंसिडरेशन एज वेल एज होल डेरिवेशन, इसी पे हम लोग डेरिवेशन बनाएंगे. सो कंसिडर a particle m, particle mass m, ठीक है, या is rotating in a circular path, is rotating in a circular path. चलो ठीक है, with the constant speed, with the constant speed to replica that कि the body is in uniform motion, इसलिए constant speed को maintain करना पड़ता है इस सिनेरियो में. let the body move, let the body move from A to C. We are going to get two scenarios. One scenario where you're showing the quantity purely velocity along the x-axis. But when the same mass is at the point C, there you're getting the direction of velocity along the tangent, but you can split that velocity quantity into two components. One is along the v cos theta, means along the x-axis as a v cos theta, along the y-axis as v sin theta. Through a small angle d theta. D theta during the time interval dt. The velocity can be resolved along two mutual two mutually perpendicular directions as shown in the figure. ठीक है, so we have, हमारे पास क्या है, we have change in velocity, change in velocity is equals to final velocity minus initial velocity. ठीक है, so वो क्या है, again we are going to make a bifurcation here so that derivation should be derived properly. Now we should write that change in velocity parallel to AB. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे ले रहा है, along the direction of AB. ओके, सो वो क्या लोगे आप,
वी आर गोइंग टू सी दैट कि फाइनल वेलोसिटी कौन सा है, इट इज पॉइंट सी। यहां पे देखो, यू कैन सी इट इज पॉइंट सी। सो v cos थीटा इंटू डी थीटा आएगा। मेरी बात समझो बच्चों। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, v cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, फाइनल वेलोसिटी। अभी पता चला ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कैसे आ रहा है? नो सर, हमें पता नहीं है सर। सी हियर, आपने ऐसा रखा, कुछ आइडिया आया? डू एनी आइडिया केम माय डियर किड्स? ओके, फाइनल वेलोसिटी का कितना आता है बताओ मुझे फट से, जल्दी से बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है? पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट माय डियर किड्स। व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी देखना पड़ेगा, कहां से लेके कहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक। बट व्हाट वी आर राइटिंग आउट, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी मतलब पॉइंट ए पे डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था। तो चेंज इन वेलोसिटी जो भी लेगा ऐसे लेगा डीवी, ठीक है। तो इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ऐसे क्यों मिल रहा है? बिकॉज वेन एवर टू वेक्टर्स वी आर एडिंग, दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं, एज आई सेड दैट into the mathematics we used to take the operation called subtraction, लेकिन फिजिक्स में सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। फिजिक्स में एडिशन होता है, नेगेटिव एडिशन होता है। क्या होता है? नेगेटिव एडिशन। एंड चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो एक तो आपका ए बी का डायरेक्शन ऐसा है एट द पॉइंट सी, इसका डायरेक्शन कैसे, ऐसे है। जब हम लोग व्हेन वी ऐड these two vectors like this, हमने इसके साथ ऐड कर दिया, वेट, हमने इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। सी हियर, सो दिस इज पॉइंट बी, ओके। एज आई एम सेइंग दैट कि डीवी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? ओनली व्हेन यू ऐड द टू वेक्टर्स। क्या किया आपने, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट v cos थीटा है। थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, v cos d थीटा, v cos d थीटा। बिकॉज ये क्या है, दिस इज v, ये आपका v है, दिस इज d थीटा। सो थीटा की जगह में आपने क्या डाल दिया, यू हैव प्लेस्ड d theta. Now what you're doing, you're doing the addition of two vectors ऐसे। So resultant क्या आएगा, resultant will be in this direction. What is that? That is dv, change in velocity. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? When you're writing change in velocity parallel to AB, इसका मतलब ये है कि v cos d theta, यहाँ पे ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फट से बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इज सिंपली v, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज ए बी। ए बी आपका क्या है, ए बी इज v, एंड dv cos थीटा ये क्या था, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसका आपने इसके साथ नेगेटिव एडिशन कर दिया, सो व्हाट वी आर गेटिंग, चेंज इन वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई, फट से बताओ, पक्का समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್, so to get what, to get change in velocity in this direction, ठीक है। so C पॉइंट पे हम v cos थीटा
that is final velocity and initial velocity is ab, ये वाला, ठीक है। तो ab को हमने इससे निकाल दिया, so we'll get the resultant in this direction only। तो वो क्या होगा, change in velocity होगा। वेक्टर ab is initial velocity। हो गया, क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। You people have got that, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। Now my dear kids, so this is the expression as theta between AB के बीच में, AB के बीच में और पॉइंट C से V cos d थीटा के बीच में एंगल कितना है बताओ मुझे, एंगल डिफरेंस कितना है बताओ। इज दैट जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू जीरो है, पक्का है। ओके, नाउ लिसन, विल प्रोसीड क्विक से 3-4 स्टेप्स में इसको खत्म कर डालते हैं, ठीक है। सो दैट इज V cos 0 माइनस V, ठीक। सो दैट इज 1 एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका, v था, सो v माइनस v दैट इज इक्वल्स टू 0। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, क्या 0 मिला। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल, पैरेलल टू किसको, OA को। अभी ये OA किधर है बताओ मुझे, OA, इसको, इसका क्या करोगे आप बताओ। सो द फाइनल वेलोसिटी इज V sin d थीटा माइनस 0। कैसे बताओ मुझे, फट से बताओ। सी हियर, इफ आई होल्ड दिस, ये वाला इसके साथ मिलाओगे, यू कैन लिसन, यू कैन सी हियर, देखो अगर इसके तरफ है तो सो द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, ठीक है। तो ऐसे है, तो वो कितना है, वो एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी along the y-axis the v component, velocity component is v sin theta at the place of final velocity। initial velocity point A पे, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, v is equals to 0, इनिशियल वेलोसिटी पे वो डालो, कितना लिखा है मैंने, मैंने लिखा है v sin d थीटा माइनस 0। क्या मैं सही कह रहा हूं, यस। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity at OA is equals to v d theta। सर ये v d theta कैसे बन गया, when the angle is very much smaller, for smaller angles, for smaller angles क्या बनता है पता है बच्चों, साइन थीटा जो रहता है ना नियरली इक्वल्स टू थीटा बन जाता है। अगर साइन डी थीटा है, दिस विल बी नियरली इक्वल्स टू डी थीटा बन जाएगा। तो मैंने साइन डी थीटा का क्या बनाया, डी थीटा बनाया। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, है ना। चलो, सो वी ऑल नो दैट कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, centripetal acceleration can be taken as a to the base c is equals to v into d theta by dt। ये फॉर्मूला हम सब लोगों को पता है, ओके। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स, ये चीज पता है ना हमको। एंड वी ऑल नो दैट की बट ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा बाय dt, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ac इज इक्वल्स टू v इंटू ओमेगा बनेगा, सही है। एंड वी नो दैट, हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, v बाय r, ठीक है। तो अगर v बाय r को हम लोग यहां पे डालें ओमेगा के बदले में, सो व्हाट विल गेट, v इंटू v बाय r, so this is nothing but v square by r। so what we are getting with the alternate method, we are getting that ac is equals to v square by r। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई बच्चों, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन। सृष्टि नांदेड़, वेरी गुड, इट्स क्लियर,
Okay, Parijan, it's clear. Thank you, my dear kids, for listening patiently this class. This chapter is over. Vaishnavi Mat, good. Aishwarya and Saundarya, good. Rakshita Kamble, Anushka Gudi, Raghuveer Bisnar, fine. Thank you. Bye bye, my dear kids. Jai Hind.